Okay, fine. So here, when we are talking about atomic structure, so it is basically a branch of physical chemistry which deals with the structure of atom. Okay, so write down here, it is the branch of physical chemistry which deals with structure of atom, and it is known as atomic structure. Okay, now, so different scientists came and they told about the different atomic structure. So Dalton was the first scientist. He gave some theories regarding the structure of atoms. Okay, so first topic is Dalton's atomic theory. So Dalton gave few postulates that how an atom can be, how its structure can be. So Dalton, you might have studied this in your 10th standard also. So Dalton's concept was related with individuality of the atom, and the main points were, so what were the main points? First, atom is the smallest particle of a matter. This was the first point. Second point is, you can also write down here which cannot be further divided. ठीक है, सबसे छोटा किसी मैटर का जो पार्टिकल होगा उसको उन्होंने बोला कि वो एटम होगा, उसको आप फर्दर किसी सब्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट वाज atoms of the same element are similar but different from atoms of other elements. What this statement means, अगर मैं यहाँ पे आयरन का कोई स्लैब ले रही हूँ और यहाँ पे अगर मैं सोडियम का स्लैब ले रही हूँ, तो आयरन के जो एटम्स होंगे वो आयरन के एटम्स के साथ मिक्स रहेंगे, मतलब ये एटम इसके जैसा होगा, सिमिलर होंगे सारे एटम्स. ओके, ऐसे मैंने अगर सोडियम ले लिया तो सोडियम के जो भी एटम्स है वो सोडियम के साथ मैच करेंगे, बट ये दोनों एटम्स आपस में डिफरेंट होंगे. Okay, so atoms of the same element के atoms होंगे, they are going to be similar but different from the atoms of the other elements. क्रिश अभी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पे बाद में बात करेंगे. ओके, ये सिर्फ इंडिविजुअली एटम्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एटम में क्या है तब तक डाल्टन, उस टाइम तक जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी तब तक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई. सो उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने थ्योरीज दिए. थर्ड पॉइंट, atoms of different element will combine in the simple ratio and form compound. So he said that different elements atom, they can combine in a simple ratio to give a compound. For example, you take magnesium. Magnesium reacts with O2 to give 2 MgO. So they are reacting in a simple ratio. Ratio is your 2:1.
That means 2 moles of magnesium you are taking and 1 mole of O2 you are taking. These are the simple ratio in which these atoms combine to give a product. Fourth point, atoms can never be created nor destroyed. Okay, you cannot create a new atom. जो भी यूनिवर्स में है वही है, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है, खत्म भी नहीं कर सकते कंप्लीटली. कोई भी एटम कभी भी फिनिश नहीं होगा. Okay, so these were different postulates which were given by Dalton, but slowly and steadily Dalton's के सारे postulates को discard कर दिया गया. Okay, this was the first theory जो atom के regardingly put forward किया गया था. बट जब धीरे धीरे चीज़ों की डिस्कवरी होने लगी तो इनका जो भी थ्योरी था वो डिस्कार्ड हो गया. सो ऑल द above postulates of Dalton were destroyed, not destroyed, discarded, were discarded because, फर्स्ट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तब क्या हुआ कि आप एटम को फर्दर डिवाइड कर पा रहे हो. और पहला रूल क्या था, पहला थ्योरी क्या था डाल्टन का, कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, बट एटम्स को आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिवाइड कर सकते हो. हाँ क्रिश, ऑफ कोर्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा ना हमने, तो वहाँ पे तो एटम के साइज में तो डिफरेंस आ ही रहा है ना. टॉप टू बॉटम आ रहे हो साइज इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज डिक्रीज हो रहा है. तो ऑफ कोर्स दो एटम के दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में साइज का डिफरेंस तो आएगा ही. ओके, सो पहला बात कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो जब इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तब जो डाल्टन का फर्स्ट थ्योरी था वो डिस्कार्ड हो गया. सेकेंड पॉइंट, atoms of same element can be different because of existence of isotopes. ठीक है, अब आपको पता है कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है 18 वाला, देन 17 वाला, ओके, देन 16 वाले. ये सब आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के. तो सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी इनकी, कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर, बट सिमिलर नहीं है. अगर आइसोटोप बन रहे हैं उस एलिमेंट के, देन दे आर नॉट सिमिलर. तो इसकी वजह से उनका जो सेकेंड पोस्टुलेट था, सेकेंड थ्योरी था, दैट वाज आल्सो डिस्कार्डेड. थर्ड पॉइंट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट. ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोला था डाल्टन ने, दैट वो सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहा है इस तरीके से 2:1. बट एक्चुअली कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स ऑब्जर्व किए गए हैं जो सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होते, जैसे आयरन का ऑक्साइड, और वो इस रेशियो में कंपाउंड हो रहा है, कंबाइन हो रहा है 0.98:1. आयरन का एक और ऑक्साइड है जो 0.95:1 के रेस्पेक्ट में कंबाइन होता है. इवन निकल का एक ऑक्साइड है, दैट इज 0.93 और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये कंबाइन हो रहे हैं. इसके बारे में आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, सॉलिड्स के बारे में जो इस तरीके से कंबाइन होते हैं. बट एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन ऑब्जर्व, जिसकी वजह से डाल्टन्स का थर्ड जो पोस्टुलेट था दैट इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. ओके, एंड नाउअडेज atoms can be created with the help of artificial
रेडियोएक्टिव मेथड्स। ओके, तो आपको पता है कि कुछ ऐसे यूरेनियम के बाद, ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था कि यूरेनियम के बाद के जो आपके कुछ जितने भी एटम्स हैं वो मैनमेड हैं, लैब में प्रिपेयर किए गए। तो जो फोर्थ पोस्टुलेट था कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो नो, एटम कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से साइंटिस्ट आर प्रिपेयरिंग डिफरेंट एटम्स। ओके, यस, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। आफ्टर यूरेनियम जो भी एटम्स पीरियोडिक टेबल में है, that is prepared by the human beings, so they are called as transuranic elements. Okay, write down this. Okay, so Dalton's की थ्योरी के बाद it led to the discovery of a lot of fundamental particles, and those fundamental particles are your electrons, protons, and neutrons. So how these fundamental particles were discovered and how they are there in existence, that we will talk about in this topic. So first is your cathode ray experiment. So this experiment was done in 1859 by Julius Plucker. The scientist's name was Julius Plucker. Okay, so what he did was he took a large this cathode ray tube. Okay, these were the two terminals. These terminals were connected through electricity like this. And what he did was, in this tube, he filled this tube with a gas which is at a very low pressure. So here this tube has been filled with a gas with very low pressure. This is your cathode terminal and this is your anode terminal. Now, you can take any of the gas, it's not necessary, but the experiment was done with hydrogen. Okay, this experiment is also called as discharge tube experiment. Okay, and you know that normally your gases are very bad conductors of electricity. Okay, if you have let's say in air, you don't feel any kind of current, that means gases are bad conductors of electricity. Okay, so you can write down here, normally gases are bad conductors of electricity. Okay, very bad conductors. But if they are present in the ionized form, like H plus ion, these are in ionic form. So actually hydrogen is releasing, let's say I am taking hydrogen. If hydrogen releases one electron, we will get a positive charge and one electron here. Similarly, if oxygen is there, if you remove one electron, you will get one O plus ion. Similarly, you can take nitrogen also, N plus and one electron, any of the gases. So what Julius Plucker was doing, he was studying the conductivity of gases. Okay, he was not discovering the electron, he was doing something else. The experiment was different. So he was actually studying that how gases can be, how can we make a gas conducting in nature. So he was studying the conductivity of gases and he found out that normally gases are bad conductors of electricity. Okay, but when you put them at a very low pressure, okay, let's say that low pressure is 10 raised to the power minus 4 atm, that pressure is somewhere around this.
In this discharge tube, this tube is also called as discharge tube. So when you take a gas which is at a very low pressure and in the discharge tube and we apply a high voltage, यहाँ से voltage provide कर रहे हैं, voltage is your 10 raised to the power 4 volt. Okay, in that case he found out that gases are conducting in nature. Okay, at normal pressure, that is your 1 atmospheric pressure, जो अभी हम pressure feel कर रहे हैं, उस टाइम पे gases are bad conductors of electricity. But if you put them at a very low pressure, यहाँ से काफ़ी high voltage आप provide करो, then gases get conducting in nature. So you can write down, when Julius Plucker created a very low pressure 10 raised to the power minus 4 atm in the discharge tube and applied very high voltage, that is 10 raised to the power 4 volt or more, then he found that gases start conducting electricity because they get ionized like this. These are all ionized form of gases. Write down this. So while he was performing this experiment, he observed that some kind of invisible rays are traveling. Okay, and they are traveling from the cathode terminal to the anode terminal, and these rays are invisible actually. And how he found that some rays are traveling? He observed that he took this side of this container and he layered it with zinc sulfide. This has ZNS coating, and since there was a zinc sulfide coating, so when these gas with low pressure were striking on this surface, it was glowing. So he found out that, and this side was not glowing. So he found out that there is something which is traveling from the cathode terminal to the anode terminal. Okay, and since they were traveling from the cathode, he named it as cathode rays. Got it? So write down, in this condition, some sort of invisible rays move from cathode to anode and he named them cathode rays. Abhi, what were the characteristics of the cathode rays? Write down here. Characteristics of cathode rays. First point, in cathode rays को मैं short form में CR करके लिखती हूँ, otherwise I'll have to write it again and again. So cathode rays travel from cathode to anode at a very high speed and they travel in a straight line. So first of all, he said that
All these rays are traveling in a straight line with a very high velocity. First thing he observed that. After that, and these rays also produced shadow of the object placed in their path. So this is your discharge tube. यहाँ से कुछ rays travel होके आ रहे हैं. Suppose you have put some object here. तो आपको इस ऑब्जेक्ट की कुछ शैडो भी मिल रही थी वहाँ पे. Okay, this is what he observed. This is your first point. Second point, cathode rays produce mechanical effect if a small paddle wheel is placed in their path. It starts rotating, which indicates that they consist of material part. Okay. What this statement says कि अगर यहाँ पे मैं सेंटर पे एक ऐसा मटेरियल रख दूँ जिसमें ऐसे कुछ व्हील लगा हुआ है, पैडल्स लगे हुए हैं जैसे फैन की तरह, तो जब यहाँ से हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स सॉरी कैथोड रेज ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पैडल व्हील, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो उसको स्ट्राइक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये घूमने लग जा रहा है. ओके, तो इसका मतलब है कि वो मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करते हैं. मैकेनिकल मतलब कुछ भी ऐसा जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो. दैट इज नोन एज मैकेनिकल इफेक्ट हियर. नाउ थर्ड पॉइंट, if electrical and magnetic field are applied, then rays are deflected towards the positive field of the plate. ओके, तो कोई भी अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड किया तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे थे, which shows that cathode rays consist negatively charged particles called electrons. ओके, सो तब डिस्कवरी हुआ कि कुछ तो भी पार्टिकल्स जो हैं वो सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब इस कैथोड रे में जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे एंड दे वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज शो फ्लोरेसेंस. ठीक है, आपने यहाँ पे ZnS की कोटिंग लगाई थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग. वो कोटिंग क्या कर रही थी? ग्लो कर रही थी. दैट इफेक्ट इज नोन एज फ्लोरेसेंस इफेक्ट. सो कैथोड रेज वर शोइंग फ्लोरेसेंस इफेक्ट. Next point, cathode rays can penetrate through thin sheets of aluminium metal. तो अगर आप एल्यूमिनियम मेटल जो है काफ़ी लाइट मेटल होता है, इफ़ यू टेक दैट एल्यूमिनियम मेटल तो उसको पास कर जाता है उसके थ्रू. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी.
ratio of चार्ज टू मास. ओके, अगर आप चार्ज से मास का रेशियो निकालते हो, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज. ओके, दैट मीन्स ई बाई एम. ई यहाँ पे चार्ज है and m is your mass. If you are taking the ratio of charge to mass, that is, which is also called as specific charge, is same for all cathode rays. इसका मतलब है कि आप उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले लो, इट डज नॉट मैटर, उसका E बाई एम का रेशियो विल ऑलवेज बी सेम. यहाँ पे लिख लो, irrespective of the gas used in the tube. ओके, अब क्यों ऐसा है, आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ जाएंगी आपको. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स. तो किसी के इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज प्रेजेंट होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी 9.1 इंटू 10⁻31 kg. तो अब चाहे आप कोई भी एटम ले लो, आप एल्यूमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. ओके, बट इलेक्ट्रॉन सेम होगा. नंबर हो, जैसे आपको पता है सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफर कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही टाइप के होंगे ना. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अलग अलग नहीं होते, अलग अलग एटम्स. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, मास इतना है. तो अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकालूं, which is your E by m का रेशियो, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स डिवाइडेड बाई मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 11 कूलम्स पर kg. ओके, so this is the thing you will get. फर्क नहीं पड़ता what element you are taking, कौन सा atom ले रहे हो, but you will find that their specific charge will be same, क्योंकि charge on every electron is same and mass of every electron is same. Atoms में number different होता है but rest is same. Got it? तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है, thus electron is basic fundamental particle of atom. Write down this. Done writing? Okay, so in the same way, they have discovered cathode rays. So in the same way, anode rays were also discovered. So second one is discovery of anode rays. That means proton की बात हो रही है. So this was discovered in 1886. Okay, so Goldstein was a scientist. He discovered, let's write down here, by Goldstein. So Goldstein was a scientist. He performed the same experiment. Okay, but he did a little bit of change. So whatever the experiment was done here, with a little bit of change, he did this experiment for anode rays.
तो सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये टर्मिनल्स है, एंड क्योंकि ही वाज लाइक कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ ऑब्जर्व की गई है किसी गैस में, तो पॉजिटिव चीज़ भी होगी, बिकॉज गैसेस तो न्यूट्रल होते हैं इन नेचर, तो अगर नेगेटिव प्रेजेंट है तो पॉजिटिव भी हो सकता है. सो ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट रखा एंड उसको थोड़ा सा ऐसे परफोरेटेड किया, मतलब प्लेट्स में छोटे छोटे इस तरीके के यू विल फाइंड एज होल्स लाइक दिस. Okay, so write down here. In 1886, Goldstein performed same experiment using perforated cathode. तो कैथोड का जो साइड था, वहाँ पे उन्होंने ऐसा कैथोड का प्लेट लिया विच हैज परफोरेशन. परफोरेटेड मीन्स छोटे छोटे होल्स होते हैं, हैविंग होल्स, या फिर बोल सकते हो कैनाल्स. होल्स, कैनाल्स, द सेम थिंग. एंड फाउंड दैट rays are not only traveling from cathode to anode, but also from anode to cathode. ठीक है, यहाँ से तो रेज पास हो ही रहे थे. ओके, बट ही सेड दैट कि सिर्फ यहाँ से पास नहीं हो रहे, इस तरफ को भी रेज आर कमिंग बैक. दोनों चीजें पॉसिबल हो रही हैं. ओके, एंड passes through holes of canals of cathode and termed as canal rays or anode rays. ओके, सो ही सेड, ही क्योंकि वो इस तरीके से छोटे छोटे होल से पास थ्रू होके जा रहे थे, तो इसीलिए दीज आर स्मॉल कैनॉल्स, सो दे ही नेम्ड इट एज कैनॉल रेज और एनोड रेज. ठीक. अच्छा, अभी एनोड की जो प्रॉपर्टीज़ है, एनोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी सिमिलर है. जो हमने ऊपर कैथोड रेज का था, सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है कि अगर आप बीच में कुछ छोटा सा फैन टाइप का रख दोगे तो वो घूमने लगेगा. और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में जैसे वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव होगा. सो यू कैन राइट डाउन हियर properties are almost same, except there is just one thing: they deflect towards negative plate, because these are positively charged, so they are going to deflect towards the negative plate of field, which indicates that they are positively charged. तो जब हम उनको इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे थे, सो नहीं नहीं, जिंक कोटिंग वाज नॉट देयर विवेक. Zinc coating was at this side वाला terminal, and this side he put some perforated this thing. जो travels कर रहे थे रेज वो इस होल के थ्रू पास कर जा रहे थे, और जो कैथोड रेज थे जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे तो यहाँ पे ग्लो करते हुए दिखाई दे रहा था. Got it? So this was the first difference in the properties. Second difference was specific charge. अब स्पेसिफिक चार्ज का डेफिनेशन क्या है? इट इज E/m का रेशियो.
तो अब चार्ज जो है वो तो सेम रहेगा प्रोटॉन पे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, लेकिन प्रोटॉन का मतलब जो भी आपके पास मास है उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का वो डिफर करेगा, है ना। कैसे देखो, E by M ratio for anode rays is smaller than that of cathode rays. I will tell you, abhi explain you, just write down first. Specific charge, that is Q by M of anode rays, depends on nature of the gas taken in the tube, which indicates that positive particles constituting the positive rays is different for different gases। ठीक है, तो ऊपर हमने एग्जांपल लिया था जिसमें H को हमने ब्रेक किया था इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ, ऑक्सीजन होगा तो O प्लस और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। अच्छा, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है ये तो सेम है, बट ये जो H प्लस आयन, O प्लस आयन और N माइनस आयन, इन्हीं पॉजिटिव स्पीशीज की वजह से एनोड रेज जनरेट हो रही है ना। ये पॉजिटिव है मतलब ये जो रेज जनरेट कर रहे हैं वो एनोड रेज जनरेट कर रहे हैं, तो ये तो सब डिफरेंट है ना। दीज आर डिफरेंट, दिस इज योर हाइड्रोजन एंड देन you have oxygen, nitrogen, so all these are different, तो मास तो वेरी करेगा, और अगर मास वेरी करेगा तो ऑफ कोर्स स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू एनोड रेज के लिए डिफरेंट आएगी। यस और नो, लेट मी नो, क्लियर है ना। ओके फाइन, सो इस वजह से इनका जो वैल्यू आता है वो डिफरेंट आता है। बट अगर मैं हाइड्रोजन कंसिडर करूँ, इफ आई एम टेकिंग फॉर कंसिडरिंग हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन उसके ऊपर जो चार्ज होता है, एक का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। वो कैथोड के लिए इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज सेम था बट वो नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव में है। ओके, और मास जो होता है एक हाइड्रोजन का मतलब H प्लस आयन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन, जब हम प्रोटॉन बोलते हैं तो वो हम H प्लस आयन कंसिडर करते हैं, तो प्रोटॉन का मतलब हमेशा वो प्रोटॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में H प्लस आयन बोलते हैं। सो वो मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए E बाई एम का रेशियो निकालना है, so that will be 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs divided by 1.67 into 10⁻⁻27 kgs, which will be equal to 9.58 into 10⁻⁷ coulombs per kg। अच्छा, H प्लस आयन को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और ये बाहर का पोर्शन है, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, है ना। अगर मैं H प्लस आयन लिख रही हूँ इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का प्रोटॉन, और एक ही प्रोटॉन है, इसीलिए हम H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। Okay, I hope you understood this. Okay, write down.
canal ray tube. Okay, 1 second. These tubes, I want to just show you a YouTube video of this experiment. हाँ संप्रिता, Q बाई एम ई बाई एम प्रोटॉन के लिए मैंने Q लिख दिया है और इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने चार्ज के लिए E लिख दिया है. इट्स सेम ओनली, डिफरेंट नहीं है. ओके ओके, सो लेट्स सी दिस वन वीडियो जहाँ पे दे आर टेलिंग यू अबाउट दी this experiment of anode rays. Okay, usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. W. Wien succeeded in deflecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively charged particles. Therefore, these are often called as positive. okay, so I hope you understood a little bit about the experiment. ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. This is how this experiment is done. Okay, if you have any doubt you can ask me. कुछ भी query है, ask me. So everything is clear till here. Okay, so next is your discovery of neutron. यूज़ ये है अनन्या कि वो उसको आप पर्टिकुलरली कलेक्ट कर पाओ एक जगह पे, अदरवाइज दे विल बी रैंडमली मूविंग नो. तो परफोरेशन किया जब यहाँ पे ये ट्यूब लिया और दीजर यहाँ पे परफोरेशन किया तो रेज को यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे जो भी कोटिंग थी वो फिर ग्लो कर रहा था, ताकि वो एक डायरेक्शन में यहाँ से हमको ये पता चले कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं. अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेंगे तो वो परफोरेशन से पास नहीं हो पाएंगे. परफोरेशन से पास हो रहे हैं इसका मतलब दे आर ट्रैवलिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज व्हाई दे हैव डन दिस परफोरेशन काइंड ऑफ अ थिंग. कैथोड रेज में भी कर सकते थे अनन्या, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट the actual experiment which led to the discovery of cathode rays was that only, because he was doing something else. वो कुछ और काम कर रहे थे, है ना. वो तो कुछ कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस को स्टडी कर रहे थे, बट ही केम टू नो अबाउट कि कुछ कैथोड रेज टाइप कुछ रेज ट्रैवल कर रही है कैथोड से एनोड. सो ही वाज डूइंग समथिंग एल्स, तो वो हमने उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पढ़ा है. ओके फाइन. So now we will be talking about discovery of neutron. Okay, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई? In 1932, James Chadwick
was bombarding thin sheet of beryllium with alpha particles. ओके, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम. हीलियम का सेकेंड नेम इज अल्फा पार्टिकल्स. तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं अल्फा पार्टिकल्स सुन लो तो दे आर टॉकिंग अबाउट हीलियम ओनली, एंड हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल. ओके, सो वी हैव हियर बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है. तो उन्होंने जब हीलियम के जो रेज है वो बेरिलियम की थिन शीट पे बम्बार्ड किया, मतलब हिट किया. तो व्हाट हैपेंड, दिस लेड टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस बेरिलियम. ओके, और जो भी आपके पास एटम आया उसको अब 12, ये सब ऐड हो गए दोनों. जब इसने इसको बहुत हाई स्पीड से हीलियम को बेरिलियम पे स्ट्राइक किया तो ये दोनों ऐड होकर 12 हो गए, और यहाँ पे हमको मिला 6. ओके, along with that he got some particle जिसका मास 1 आ रहा था बट इलेक्ट्रॉन 0 थे. तो 9+4 करोगे तो 13 आएगा, बट यहाँ पे मिला 12, कार्बन मिल गया हमको. और उसके अलावा हमको एक ऐसा एक प्रोटॉन प्रेजेंट था. और ये जो था पार्टिकल दैट वाज न्यूट्रल इन नेचर, एंड दैट न्यू पार्टिकल डिस्कवर्ड इज कॉल्ड एज योर न्यूट्रॉन. ओके, so write down here. And he found that a new particle which is electrically neutral and having mass greater than proton emitted, and he named it neutrons. So finally electrons, protons and neutrons are the fundamental particles present in an atom. Got it? Write down this. Okay, now let's see a video or how these neutrons were discovered. Okay, okay, 1 second. Objective: to know how neutrons were discovered. After the discovery of electrons and protons, scientists attempted to calculate the atomic masses of different elements. Scientists thought that as mass of electrons is negligible, mass of an atom should be equal to total mass of protons present in it. If that were to be true, the mass of a carbon atom should be equal to
mass of 6 protons presented. But that was not true. Experimental studies proved otherwise. The mass of a proton was found to be much less than the actual mass of an atom. It was thus concluded that the excess mass was due to some other particles. Okay, so what they are trying to tell you is कि अगर एक एटम है, कार्बन लिया है, तो कार्बन के पास हमको पता है कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन होता है, सॉरी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है. तो जो भी मास है 6 प्रोटॉन का, इट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. बट जब हमने एटम का मास किया, ये तो इन दोनों से भी ज़्यादा आया, दोनों को ऐड करके भी जो वैल्यू आई उससे भी ज़्यादा थी. तो क्यों ये ज़्यादा आ रहा है? तो इसका मतलब ये कुछ एक थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट है एटम में जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड दैट थर्ड पार्टिकल इज योर न्यूट्रॉन्स. That had considerable mass. Later in 1932, James Chadwick discovered neutrons through a series of scattering experiments conducted to probe the interior of atoms. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1935 in honor of this important discovery. Let us now understand the experiment that enabled the discovery of neutrons. In this experiment, alpha particles were projected towards a beryllium foil. As a result, the beryllium foil was found to emit some mysterious particles that had neutral charge. These rays were then allowed to pass through a slab of paraffin wax, which resulted in the release of charged atoms due to collision. These charged atoms were then made to enter a chamber filled with gas. The charged particles ionized the gas, which led to the drift of ions towards the electrode, constituting a current. By measuring the current, the mass of ejected atoms was estimated, which led to the conclusion that the mysterious rays consisted of particles whose mass was almost the same as that of proton. Chadwick identified these uncharged particles as neutrons. The mass of neutron was found to be 1.678 into 10. Okay, so I hope you could understand this experiment, what they were showing. So ultimately, we had to know that how these experiments are done in lab actually. Okay, now we will be making a table, and in which I will be telling you about these all three fundamental particles. So this is your particle, mass, charge, symbol, and scientists who discovered these particles. So first of all, it is your electron. Mass on electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Charge is your, because it is electron, it will be negative 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. Symbol is your like this. You are going to represent an electron in this particular manner. And the scientist who discovered was Thomson. अच्छा, अभी सबको लगा कि मैम आपने जूलियस क्लर्क लिखवाया था, तो he was doing some other experiment. उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी करी थी, बट कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था. नेक्स्ट इज योर प्रोटॉन. For proton, mass is 1.6726 into 10 raised to the power minus 27 kgs. एंड चार्ज विल बी एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज होता है, बट वैल्यू पॉजिटिव में होगी. सो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, या तो P से आप देखोगे या तो फिर H प्लस आयन, विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टीन. नेक्स्ट पार्टिकल इज योर न्यूट्रॉन. Mass of neutron is almost similar to the mass of proton. So 1.6749 into 10 raised to the power minus 27 kgs. And charge is neutral. कोई charge नहीं होता उसके ऊपर. It is represented as N, and it was discovered by James Chadwick. Okay, write down this.
ओके, सो दीज आर योर डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स. इनकी डिस्कवरी होने के बाद डाल्टन का जो पूरा थ्योरी था दैट वाज डिस्कार्डेड. अभी हम थोड़े से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में, जो कि हमको लेटर ऑन इस चैप्टर में यूज आएगा. सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, क्या Okay, sorry everyone, there was a little bit of network problem. So as I was saying that here we will talk about the properties of the charges. That means charge is basically quantized. That means they will be present only in an integer value. आप 1.5 charge नहीं रख सकते, fraction में नहीं हो सकता वो. It will always be from 1 to infinity. कितना भी value हो, 1 2 3 4, it will be in that form. So we can write down Q is equal to NE. Total charge बता रहा है, N is any integer value. Okay, and these type of properties is known as that they are quantized. Charges are of two types. Of course, one is your positive, another one is your negative. Positive is your proton जिसके ऊपर चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, एंड नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. चार्ज सेम, वैल्यू इज, मैग्नीट्यूड इज सेम, बस साइन डिफरेंट हो गया. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. Third, same charges repel each other and opposite charges attract each other. ये सब तो पता ही है, there is nothing new. Then fourth point, charge is a scalar quantity. अच्छा, ये फिजिक्स में पढ़ा है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. लेट मी नो.
Has anyone heard about scalar quantity and vector quantity? Let me know. है ना? ओके गुड. सो चार्ज इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड उनके बीच का जो भी फोर्स आएगा, मान लो मेरे पास एक ये चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q1 है, मेरे पास ये सेकंड पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q2 है, और इनके बीच का एक डिस्टेंस है दैट इज r. ओके, तो ये जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square. Okay, and this can also be written as a constant k, and you can write down Q1 Q2 by r square. So ये आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे जहाँ तक मुझे याद है. So you will study all this formula in your physics first chapter. I think वेक्टर के बाद ही आता है. Okay, in first chapter में. So this is the force between any two point charges, जिनके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है Q1, नेगेटिव भी हो सकता है. ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, सो ये हो सकता है आपको आगे कुछ कुछ फॉर्मूलेज में इसका यूज़ देखने को आपको मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको आनी चाहिए दैट इज़ योर कन्वर्जन, कि एंगस्ट्रॉम से मीटर में कैसे करना है, नैनोमीटर से मीटर में कैसे करना है, फेंटोमीटर से मीटर में कैसे करना है. दे माइट गिव यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो दैट कन्वर्जन यू शुड नो. सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁻9 meter. Then 1 micrometer is equal to 10⁻⁻6 meter. 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter, and 1 femtometer is equal to 10⁻⁻15 meter. ओके, सो हो सकता है आपको इन कन्वर्जन्स का यूज़ करने को मिले. सो इफ़ यू नो दीज बेसिक थिंग्स देन यू कैन easily convert these units. Okay, next point, potential energy of a charged system containing two charged particles Q1 and Q2 are placed at a distance r is given by. ठीक है, सेम चीज़ है, बट इंस्टेड ऑफ फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी. वैल्यू एकदम सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर. आप फोर्स में देखोगे तो वहाँ डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा था आर स्क्वायर, बट जब पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट है. ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. नाउ इफ अ चार्ज Q is placed on a surface having potential V volt, then energy of charge is given by. मतलब ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक चार्ज सरफेस है, ओके, और एक जिसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उस पर आपने एक चार्ज पार्टिकल को पुट किया है जिसका चार्ज Q है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी. तो दैट इज योर E इज इक्वल टू Q इंटू V. ओके, V इज योर वोल्ट यहाँ पे एंड Q इज योर चार्ज. एंड आपने फिजिक्स में ये सब कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़े ही होंगे. इन ग्रेविटेशनल फील्ड
फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ mg² या फिर mv², जो भी गिवन है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, mgh। तो ये सारे फॉर्मूलेज का हम यूज़ करेंगे, इसीलिए मैं ये सब फॉर्मूलेज आपको पहले बता दे रही हूँ। ओके, राइट डाउन दिस। Done writing? Okay. Next small topic is your electron volt. ठीक है, मैंने आपको जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो हम एनर्जी की यूनिट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड आई टोल्ड यू दैट वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. So this is the thing we will be talking about here. Okay. Charge of electron is represented as E. ठीक है, अगर मैं सोडियम प्लस लिख रही हूँ इसका मतलब उस पर ई चार्ज है. ओके, ये माइनस मत लगाओ, सिर्फ ई लिखो. अगर मैं लिख रही हूँ Mg+2, दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है 2e चार्ज है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेसिकली इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द unit of energy and it is defined as kinetic energy gained by an electron when it is placed in an electrical field of potential difference 1 वोल्ट. सो किस तरीके से आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इट इज़ बेसिकली एनर्जी. और ये किस टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, विच इज़ गिवन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड. ऐसा आपने कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो जो उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी दैट इज़ नोन एज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज Q, जो भी उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ओके, इनटू V, मतलब वोल्ट. QE, इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, E, और यहाँ पे इनटू V. तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी हियर बिकम्स इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और ये चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, अगर हम जाउल्स के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें तो आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 1.6, बिकॉज चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है, और वोल्ट हमारे पास 1 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही है. सो दिस कम्स आउट टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स एंड वोल्ट. एंड इस कूलम वोल्ट को ही आप जाउल्स बोलते हो. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 joules. Got it? तो ये लर्न कर लो, बहुत जगह आपको ये यूज़ करने को आएगा, वो नहीं होना चाहिए. कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्टली किलो जाउल्स पर मोल के लिए भी हो सकता है. देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जाउल्स पर मोल. अच्छा, अब देखो पर मोल है तो मोल वाली चीज़ भी यहाँ पे यूज़ होगी.
ये तो मैंने आपको डायरेक्टली वैल्यू बता दिया, बट आया कैसे है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, दिस इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। बट अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने Na वैल्यू होता है ना, डिवाइडेड बाई 10⁻³ बिकॉज आपको किलो जाउल्स में करना है, तो यूनिट हो जाएगा किलो जाउल्स पर मोल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको मिलता है 96 किलो जाउल्स पर मोल। तो ये सब यूनिट कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंसर अगर किलो जाउल्स में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तभी वैल्यू निकल के आएगी। अंडरस्टूड? Okay, next topic is your atomic models. ठीक है, अब different different atomic models were discovered and first was your J.J. Thomson. So first of all, write down this. After the discovery of electrons, protons and neutrons, scientists thought about arrangement of these particles inside the atom. Okay, and model dealing with these arrangements of fundamental particle inside the atom is known as atomic model. ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ कुछ अपने स्ट्रक्चर्स दिए हैं, एटॉमिक मॉडल दिया है, बट धीरे धीरे हमने उन सारे मॉडल्स को डिस्कार्ड किया है। इवेंचुअली हम क्वांटम थ्योरी पे चलेंगे, विच इज़ योर लास्ट थ्योरी, सो इवेंचुअली वी विल स्टडी दैट ओनली, बट बिफोर दैट संप्रता क्या पूछ रहे हो? बीच में इक्वल टू मतलब व्हाट आर यू सेइंग? पोटेंशियल एनर्जी के बीच में इक्वल टू आएगा या ऐसे ही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में इक्वल टू आएगा ना, फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला में तो इक्वल टू आएगा ही संप्रता। मैम उसके बाद का वो Q1 Q2/R। ये दिस इज मल्टीप्लाइड है, ठीक है मैम। उनके बीच में दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन एक्चुअली। ओके, हाँ मैम। so different models were given and the first model which was given by the J.J. Thomson. Okay, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। So first model is J.J. Thomson model. अच्छा, J.J. थॉमसन ने कुछ खास उनका कुछ बेसिक नहीं था देने का, ही जस्ट थॉट कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। उन्होंने ऐसा बोला कि एक सर्कुलर स्फीयर है एटम के स्ट्रक्चर में, एंड दिस होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, और इनके बीच में इन बिटवीन छोटे छोटे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड हैं। जैसे आपके पास वाटरमेलन टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, पूरा रेड कलर का जो एरिया है दैट इज़ योर पॉजिटिवली चार्ज, और बीच में जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप प्लम पुडिंग भी बोल सकते हो, जो आपके ऐसी पुडिंग आती है केक टाइप का आता है, उसके बीच में छोटे छोटे आपको कुछ चेरीज टाइप के दिखते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से उन्होंने इसको कंपेयर किया था, एंड ही सेड दैट
According to Thomson, atom is positively charged uniform sphere in which electrons are embedded in between to maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आपका एटम। So without any experimental proof, he gave this model, and also this model is also called as plum pudding model. Okay. अब इसके बाद आया जे थॉमसन का मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड का मॉडल। जब रदरफोर्ड का मॉडल पुट फॉरवर्ड किया गया तो जे थॉमसन का जो भी एक्सपेरिमेंट था दैट वाज टोटली डिस्कार्डेड। मतलब ऐसा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से इट वाज प्रूव दैट कि ऐसा कुछ तो एटम का स्ट्रक्चर नहीं है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉर, आपने 9th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। यस, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वाई है ये। सेकेंड इज योर रदरफोर्ड मॉडल। ओके, रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल दिया इट इज दिस। अब उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल कंसिडर किया, बहुत ही थिन शीट है, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल को इस थिन शीट पे बम्बार्ड कर रहे हैं। ध्यान रखना है, जब भी मैं अल्फा पार्टिकल बोल रही हूँ, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, हीलियम। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो अल्फा पार्टिकल के रेज को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब जब ये रेज यहाँ से इसके सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है तो कुछ रेज जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर गई, कुछ रेज जो है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, नॉट मोर बट थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे रेज थे जो यहाँ से जा रहे थे और एग्जैक्टली 90 मतलब उल्टा 180 डिग्री पे वापस आ गए। सो दीज वर द 3 काइंड्स ऑफ थिंग ही ऑब्जर्व। यहाँ पे उन्होंने एक इसके लेयर को जिंक सल्फाइड के साथ कोटिंग किया हुआ था ताकि अगर कोई रेज इस पे स्ट्राइक करेगी तो वो ग्लो करेगा, बिकॉज रेज दिखती तो है नहीं। तो दिस इज योर जिंक सल्फाइड कोटिंग। तो कुछ बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, 0 डिग्री पे स्ट्रेट चले गए, एक एग्जैक्टली 180 डिग्री पे कुछ पलट के वापस आ गए, और कुछ में छोटे मोटे डिफ्लेक्शन हुए। तो जिस एंगल पे डिफ्लेक्शन हुआ है लेट्स से उसको हम बोल देते हैं थीटा, एंड इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, and this is a very famous experiment. It is also known as alpha scattering experiment, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, आपने देखा दैट 3 ऑब्जर्वेशंस मिले। लेट्स फर्स्ट राइट डाउन ऑब्जर्वेशंस। First observation, most of the alpha particles, that means 99%, passes straight through the gold foil। सब के सब मोस्ट 99% जो है वो पास कर गए विदाउट हैविंग एनी डेविएशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
deviated through small angle. बहुत ही कम ऐसे थे जो थोड़े छोटे स्मॉल एंगल से कुछ डेविएट हो गए. एंड थर्ड पॉइंट वाज very 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 few, like very less alpha particles, that is 1 in 20,000, returned back with a deviation of 180 degrees. 180 डिग्री डेविएशन से एकदम उल्टे पलट के आ रहे. ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड. कंक्लूजन क्या निकाला इससे? ये तो inside the atom is empty. सारे के सारे मोस्टली रेज क्रॉस कर चुके थे. इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो स्पेस है वो एम्प्टी है. दैट इज like 99% of the space is empty because rays are going straight. Since some alpha particles were experiencing some deflection, okay, that means there should be some hard positively charged dense part at the center. तो एक्चुअली ये जो हमने अल्फा पार्टिकल्स लिए हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज ओनली. ये अल्फा पार्टिकल्स खुद भी जो है, हम एक इलेक्ट्रॉन हटा के इसको हीलियम पॉजिटिव ही हीलियम +2 के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हम हीलियम +2 को ही पास कर रहे हैं. तो ये खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है. और क्योंकि जो भी न्यूक्लियस होता है, आपको पता है एटम का, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो रिपल्शन होता है. तो अगर वो न्यूक्लियस से टकराया तो एग्जैक्ट रिपेल करके वापस चलेगा. ओके, 180 डिग्री पे. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके.